inverter is a device that converts the DC power into AC power. Okay, but that AC power will be the desired AC power which we want. As per the demand, we can vary the voltage and we can vary the frequency. Okay, such kind of device is known as the inverters. Okay, so in the content, these are the things that we are going to see. In the introduction that we have already discussed, but if we can say that again, I'm telling you the definition of inverter. It is the device which converts the DC power to AC power, but AC power will be the desired AC power as per the demand. Okay, so the voltage and the frequency both can be vary in the inverter. Okay, so some industrial applications of inverters are for adjustable speed AC drives. जैसे हम adjustable करते हैं ना, हमें speed AC drives की speed हमें कंट्रोल, एडजस्टेबल स्पीड AC ड्राइव्स, जैसे हम एडजस्टेबल करते हैं ना, हमें स्पीड AC ड्राइव्स की स्पीड हमें कंट्रोल करनी है, राइट. देन इंडक्शन हीटिंग में यूज करते हैं, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द UEE, आई थिंक. यस और नो? हैव यू स्टडीड इंडक्शन हीटिंग? यस मैम. ओके. देन द स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट्स, देन UPS that we have already discussed. Then the HVDC transmission lines and etc. Okay, so there we need an inverter as a device which converts the DC to AC power, desired voltage, desired frequency. Okay, so this is the simple basic block diagram of the inverter, where you can see the input is DC and the output is AC. Okay, so when we are using the thyristors, that is the SCR, so in the inverter we can use the SCR or any other semiconductor devices, which is depend on which type of commutation we want. Okay, so if we are saying that here the fourth point, you can see the forced commutation circuit is an essential part for SCR based inverter. If we are talking about SCR, means the thyristorized inverters, then the forced commutation will also be there, but it will be very bulky and costly as well, because we need to give us different pulses to different thyristors. Okay, so for that, if we are talking about the 3-phase, so it will be very bulky and costly as well. So if we are using for line commutation or natural commutation, then we can use the MOSFET, GPUs, IGBTs. All right. So now the line commutated inverters can't function as isolated AC voltage sources or variable frequency generators with DC power at that input. Okay, so जो line commutated inverters है वो function नहीं कर सकते, हम isolate नहीं कर सकते AC voltage source को. Okay, but that's why voltage level or frequency and waveform of the AC side of the line, means this side, line commutated inverters cannot be changed. अगर हम लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी या वेवफॉर्म है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा हमारा आउटपुट. ठीक है, बट इफ वी आर यूजिंग द फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स, it means the SCRs or the thyristors, so it is independent on the AC output voltage of the adjustable voltage and frequencies. Okay, so let's see the classification of the inverter. So these are some broadly inverters have broadly classified in 4 different ways. So let's see. The first one is, it is based on the nature of the source, means in the input which type of source we are giving, that is voltage or current. So on the basis of that, the voltage source inverter and current source inverter is there. Okay, and then next is based on the configuration of the inverter. So if we are talking about the configuration of inverter, so based on that there are 3 types of inverter, that is series inverter, parallel inverter, and then bridge inverter. Bridge inverter, again it is classified into 2 different points.
that is the half bridge and the full bridge. Okay, so these are the configuration of, based on the configuration of the inverter. If we are talking about the output waveform, nature of the output waveform, so square wave, quasi square wave, PWM, that is pulse width modulation, and sine wave. These four type of output waveform we can able to see. Okay, so based on that nature of output waveform, we have classified the inverter. Next and the last is the based on the commutation circuit. Okay, there are two types, that is the force commutation and line commutation or natural commutation. So if we are talking about the force commutation, then SCR will be there. If we are talking about the line commutation, then transistors, MOSFET, GTO will also be there, and IGBT is also there. Okay, so these are the classification of the inverter. Now in your syllabus, we are going to study only the single phase series inverter, single phase parallel inverter, single phase bridge inverter. In that we are going to study single phase half bridge, single phase full bridge. Okay, and after that what we are going to study, the PWM, that is the pulse width modulation reduction, harmonic reduction, how we are supposed to reduce the harmonic, on what basis, what are the different types of harmonic reduction in the inverter, what is the need of the harmonic reduction in the inverter, that we are going to study. Again I'll just tell you what is important as an inverter. If we are studying inverter, so you need to know the three phase inverter as well, three phase bridge inverter. Okay, which plays an important role. Without that, the inverter, we are not supposed to say that inverter is completed or we have studied the inverter. But in your syllabus, there is no such kind of three phase inverter. So let's see, if time allows, then I will definitely teach you the three phase inverter, at least 180 and 120 degree mode. Okay, but first we'll go with the syllabus only. So these are some classifications of the inverters. Here we are going to first study the bridge inverter. In that we are going to study the half bridge and full bridge. Okay, so this is the diagram or circuit diagram of the single phase half bridge inverter. As you can see, the voltage source has been divided in two different parts. So in the input side, you can see there is three wires, 1, 2 and 3. Okay, so this is the single phase half bridge inverter. Basically we can see the operating principle of the voltage source inverter. This is the half bridge inverter, is nothing but the voltage source inverter. Okay, because we are using voltage as a input. Okay, where the current current is using as a source, there we can say that particular circuit diagram is a current source. Okay, but this one we are talking about, it is voltage source inverter. So firstly, the single phase bridge inverter. In that we are going to study the first single phase half bridge inverter and then single phase full bridge inverter. So in the single phase half bridge inverter, what you can see this voltage, the total voltage Vs, has been splitted out in two different types or two different parts, that is Vs by 2 and Vs by 2. Okay, so here you can see the one thyristor is there, and then second thyristor is there, T1 and T2 is there. Here you can see the T1 and T2, these are the freewheeling diode. Okay, you can see the direction of the voltage. Okay, output voltage. With the help of this direction, you can able to see that the output voltage is in positive waveform or in negative waveform. Okay, so here we are going to study the first single phase half bridge inverter. Okay, so if suppose when the in the mode 1, what will happen in the mode 1?
This is if suppose we are talking about the pure resistive load. If we are talking about the pure resistive load, यहाँ पे सिर्फ resistor है. Suppose, okay? यहाँ पे सिर्फ resistor है. So what will happen? Diode will work or not? ये work करेगा क्या ये part? No, ma'am. This will not going to work, okay? For the pure resistive load, if in the mode, if we are talking about the mode 1, what will happen in the mode 1? The D1 starts conducting. The T1 starts conducting, so the flow of current will be like, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना, हमने बहुत सारे सर्किट डायग्राम देखे. So I hope you know कि exactly the flow of current will be like what? The way of flow of current. Tell me. Who is going to tell me? From upper VS2 Yes. T1 to V0 and back to upper VS2. Yes. Vs by 2. Okay. So, Vs by 2. right. So in the mode 1, what do you think the output voltage will be? Positive. Positive. Very good. Okay. And the current will be Positive. That also positive. positive. Okay. Now, this is the mode 1. Now, what will happen in the mode 2? From downside Vs by 2 is it to V0, then T2 and back to Vs by 2. Yes. And there the voltage will be, the output voltage will be Negative. negative. Yes. Good. Very good. Very good. Very good. So, everyone, you got the point? Yes or no? जोर से बोलो, बताओ सब. Yes or no? Yes, ma'am. Good. So this is the mode 1 where you can see the flow of current. It is Vs by 2 positive, T1 load which will be the positive, and then it will come back to the Vs by 2 negative. Okay. This is the mode 1 when T1 is on. When T2 is on, then the current will be like this. Here the voltage will be the negative. So, if we are giving gate pulse, if we are giving the gate pulse to thyristor 1, means we can say that this one is happen. The output voltage will also be positive. The output voltage will also be positive. And if we are giving gate pulse at a particular time, okay, at a particular time, after a particular point, then the voltage across the load will be negative, okay, with the same we can say the magnitude. Okay. So in this way, if we are using the gate to if thyristor 1 has been if thyristor 1 is conducting, then the positive in the positive half cycle you can say the output, you can see the output voltage. And if we are talking about the T2, then in the negative side the voltage occurs, okay, the load voltage. So this is the T by 2, this is the T by 2 because this is the total T, it is the total time T. okay. एक T by 2 में यहाँ से चालू हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 0 to T by 2 T1 will conduct, and 0 to T by 2 T1 will be conduct, and T by 2 to T2 will conduct. Okay, so in this way you can actually see the pure resistive waveform of the single phase half bridge inverter. Okay, this is the output which I have got with the help of the simulation. Okay, here you can see this. This is the T1, a gate pulse for T1. This is the gate pulse of T2. When gate pulse of T1 is 1, then it is 0, and then where gate pulse of V2 is means T2 start conducting, then T1 is off. In this way, we can see the output waveform. Okay, T1 है तो +24, T2 है -24. Okay, अब मैंने exactly क्या किया that I will definitely going to show you. If the load is purely resistive, okay.
मेरा टोटल कितना दिख रहा है आपको? टोटल वोल्टेज कितना है? डीसी वोल्टेज 48. The total voltage is 48. So this one is Vs by 2, which will be the 24 and then minus 24. Are you able to see here? The last waveform is the output waveform. The first waveform is the input voltage, that is the DC voltage, which is 48 volt. Then the next waveform is the Ig1, that is the gate pulse of T1. Next gate pulse of T2, and this one is the output voltage. Now you can see what exactly, how exactly it can be divided by. See, हमारे पास टोटल कितना है? 48. हमने ऑलरेडी हमारे सर्किट डायग्राम में देख चुके हैं हम कि क्या हो रहा है, Vs by 2 Vs by 2 हो रहा है, मतलब जितना टोटल है उसका क्या होगा बेटा? हाफ आ जाएगा, है ना? तो 24 आएगा यहाँ पे, 24 पॉजिटिव, देन 24 नेगेटिव, देन 24 पॉजिटिव, देन 24 नेगेटिव. दिस वन इज फॉर T1 when T1 is conducting, this is when T2 is conducting. Okay, तो it will be goes like this. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक समझा सबको? What is single phase half bridge inverter? Yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, good. This is the current. This is the current waveform. Okay. So now, if suppose the load is purely inductive, if the load is purely inductive, what will happen? We'll see. The voltage is same, yes, as same as the resistive load, purely resistive load, yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now you can see the current waveform. This is the current waveform, है ना? जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने इंडक्टिव, वहां पे इंडक्टिव लोड ला लिया, यहाँ पे क्या होगा? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, है ना? जैसे ही इंडक्टिव लोड आ जाता है बेटा, तो क्या हो जाता है? ये चालू हो जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने के लिए, है ना? ये देखो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इंडक्टिव लोड है. फिर ये डिस्चार्जिंग हो रहा है. डिस्चार्जिंग क्यों हो रहा है? ये D1 D2 की टर्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां पे क्या आएगा? हमारा D1 D2 आएगा, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? ये तो पहला मोड 1 सेम रहेगा. मोड 1 के बाद क्या होगा? T1 क्या हो जाएगा? ऑन कंडीशन में आ जाएगा. T1 ऑफ कंडीशन में. फिर इट विल start the inductance will start discharging like this. Inductance will start discharging like this. Okay, so in this way, जब यहाँ पे इंडक्टिव लोड रहेगा, तो इंडक्टिव लोड, इंडक्टर क्या करेगा? खुद की पोलैरिटी, जैसे ही T1 ऑफ हो गया, इंडक्टर खुद की पोलैरिटी चेंज करेगा. जैसे ही उसने चेंज की, देन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर्स, देन Vs, देन inductance, then D1, then Vs by 2, and then it will come back to the inductance. In this way, inductor will start discharging through D1, okay, and then same here also, okay. So that's why it comes like this, charging and discharging, charging and discharging, okay. Now let's see the different. Purely capacitive देखते हैं होता है क्या. It is again same. ये देखो, ये ऐसे आ गया, ठीक है. अब हम करते हैं RL लोड करते हैं. RL
ये फिर से सेम हो गया, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखो, ठीक है, अगेन दिस विल बी द सेम। नाउ यू कैन सी दी RLC लोड में क्या होगा, RLC में, ठीक है, लेट्स सी फॉर RLC लोड। दिस इज अगेन सेम, बट यहाँ पे क्या होगा, करंट में क्या होगा, ये आएगा ओवर डैम और अंडर डैम कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे ओवर डैम अंडर डैम कंडीशन आ जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, बताओ कौन सी कंडीशन है। ओके, लेट इट बी। आपको ये सब नहीं है, आपको सिर्फ रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड के बारे में पढ़ना है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली about the single phase half bridge inverter where we have studied now। अगर हमारा लोड रेजिस्टिव है तो आउटपुट कैसे आएगा, और हमारा लोड अगर इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव बोथ है तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। So now if we are talking about the single phase full bridge inverter, instead of, अब इसमें इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सिंगल फेज हाफ वेव के कुछ ड्रॉबैक्स है। टू ओवरकम दैट ड्रॉबैक्स वी आर गोइंग टू सी द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। ओके, इन दिस पर्टिकुलर single phase full bridge inverter you can see there is no such kind of split here in the source voltage. The voltage source is totally Vs only, there is no such V by 2 and V by 2. Okay, the whole source voltage will go to this particular circuit diagram. Here in the full bridge inverter we are using the 4 thyristors and the 4 diodes. When there is inductive load is there, then the diode will come in the operation, otherwise it will not in the operation if we are talking about the resistive load. So we are having the 4 different thyristors and 4 different diodes, all right. So and the load is connected here, load is connected here. So what will happen, क्या होगा बताओ। MVS T1, हाँ, V0 T2 and back to Vs. गुड, वेरी गुड। सो वोल्टेज लोड अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, Positive. पॉजिटिव, गुड, Positive. yes, very good. Now this one is the mode 1. Now mode 2, Vs2 T3 to V0 T4 and back to Vs. back to Vs, Voltage negative. वोल्टेज निगेटिव, गुड, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं क्या सिंगल फेज और हाई इसमें? Only ma'am single source is used and 4 thyristors are used and 4 diodes. Yes. Yes ma'am, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो हाफ में नहीं मिलेगा, हाफ में नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यस, तो टोटल VS यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी टोटल VS आएगा, है ना, नो VS by 2, नो VS by 2, राइट। सो नाउ लेट्स सी दी, दिस इज द सर्किट डायग्राम। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है मैंने, 50 कंसिडर करके दिया है। नाउ लेट्स रन दिस। है ना, हमारा कितना है आउटपुट, VS कितना है 50, तो हम यहाँ देख सकते हैं 50 50 50 50, ओके। So this is how it should come,
और ये करंट है, अगेन ओवर डैम्प अंडर डैम्प आएगा क्योंकि मैंने RLC यहाँ पे यूज किया है, इस वजह से ये ओवर डैम्प अंडर डैम्प आएगा, ठीक है। सो हियर आई हैव यूज्ड द लाइन कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन यूज किया। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया, मतलब जब T1 और T1 और T2 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, उस टाइम जो गेट पल्स आएगी T3 T4 को वो आएगी 0। जब T1 T2 को 1 गेट पल्स आएगी तो T3 T4 को 0 गेट पल्स आएगी, राइट। और जब T3 T4 को 1 गेट पल्स आएगी, T1 T2 को 0 गेट पल्स आएगी, ओके। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव यूज्ड नॉट गेट over there. With the help of NOT gate, the pulse is generator is only one. I have used only one generator, okay. But before NOT gate, I have used 2 thyristor, and after NOT gate, I have connected 2 thyristor to the output of the NOT gate, so that if the pulse generator generates one amplitude of pulse, then it will goes to the T1 and T2 and it start conducting, and then when it is 1, then with the help of NOT gate, the output of the NOT gate will be 0, so it will goes to the T3 and T4. Then that time when it is 1 for T1 and T2, that time T3 and T4 will not going to conduct. In this way I have just connect all the parameters and I have got the result. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Let's see. So this is what about the single phase half bridge and single phase full bridge converter. So now tell me what can you compare the single phase half bridge and single phase full bridge? Just tell me the normal comparison. क्या हो सकता है, compare क्या कर सकते हैं, बोलो. Construction wise, in half wave we use 2 diode and 2 thyristor, Right. and with battery sources. And in full wave we uses 4 thyristor, 4 diodes and single source. Right. And in output voltage, in full wave we get the complete output voltage, but in half wave we get half of the source voltage. Half of this source. Vs by 2. Yes, Vs by 2. Right, very good. Again. At a time, 2 thyristor will conduct in full bridge, right? Yes. This is some comparison between the half bridge and full bridge. With the help of different parameters. So need of output transformer नहीं, दोनों को नहीं चाहिए. Then number of thyristor half bridge में 2, full bridge में 4. Efficiency किसकी ज़्यादा है, half bridge की ज़्यादा, दोनों की ज़्यादा है. Then voltage source across the non-conducting thyristor is V volt, ये हम बताएंगे. उसके बाद आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे होता है, ये स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर वेवफॉर्म होता है, क्वाजी स्क्वायर भी आता है और PWM भी आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट करंट रेटिंग, इट इज इक्वल टू द लोड करंट, बोथ आर द इक्वल टू द लोड करंट, ओके. देन नंबर ऑफ डिवाइसेस कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली, यहाँ पे एक होता है, जैसे T1 है तो T1 होगा, यहाँ पे कैसे होगी, 2 कंडक्ट होते हैं, T1 T2 और T3 T4, ओके. So this is all about the comparison of the full and half bridge inverter. So this is all about the bridge inverter. Now we are going to see the series and parallel inverter. Okay, so this is the typical diagram of series inverter, as you can see here. So in the series inverter, commutation components are connected in series with the load. That's why this is called the series
इन्वर्टर. अब कम्यूटेशन कंपोनेंट कौन से हैं हमारे? सो these two are the commutation component. और ये जो R है ये है हमारा लोड. इसके साथ क्या है, ये सीरीज में कनेक्ट है. ये सीरीज में कनेक्ट है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीरीज इन्वर्टर. इसको क्या बोलेंगे, सीरीज इन्वर्टर. Okay, here in the single phase basic series inverter we are using two SCRs or two thyristors T1 and T2. Okay, the C1 L1 that is capacitance and inductance is connected in series with the load. Okay, so this is basic circuit diagram for the basic series inverter. Okay, series circuit must be underdamped and current attains zero value due to nature of सीरीज सर्किट. ओके, वो अंडर डैम्प होना चाहिए जो सीरीज सर्किट है. सो द इट इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज द सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर एंड लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर. सेल्फ कम्यूटेटेड मतलब इट इज अगेन डिपेंड ऑन द विच काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस वी आर यूजिंग. ओके, सो अगर वो फोर्स कम्यूटेटेड है तो वो होगा ये SCR होगा, सेल्फ कम्यूटेटेड है तो वो दूसरा कुछ होगा. ठीक है, जो बाकी के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं. और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है. ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होता है. ये होता है 200 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये ऑपरेट होता है. ओके, यस और नो? हेलो, Yes, द ma'am. Yes, पॉइंट. ma'am. अगर मैं एग्जाम में पूछूं, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें आपको नोट डाउन करने को बोल रही हूँ. ठीक है, मैं जितना कुछ बोलती हूँ ना उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम में आने वाले. वो ऐसा नहीं कि मैम ने लिखा के दिया तो वही आएगा. ठीक है, मैम जो बोल रही है उसमें भी पॉइंट, जैसे मैंने अभी बोला कि ऑपरेटिंग, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, MCQ है ऑफ कोर्स वी नो दैट, कि कौन से मतलब जैसे सीरीज इन्वर्टर वर्क्स एट डैश डैश फ्रीक्वेंसी. अब मैं लिख सकती हूँ मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी. तो क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर? टू 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 500 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ये भी आपको आना चाहिए. मेरे एक स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन बन गए अभी के अभी आपके आगे. तो मैं वो ना गूगल यूज करती हूँ ना कुछ यूज करती हूँ. मैं वो जो बता रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे, उसी में से आपको क्वेश्चन करने हैं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सभी को बता रही हूँ मैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज सो व्हाट विल हैपन इन द मोड 1? What will happen in the mode 1? बोलो, इजी है ना? बोलो. SCR1 will be on. Yes. Hence current will flow from SCR1 to C1 L1R and back to source. Yes. And in mode 2 the SCR will be switched off and SCR2 will be on. Hence inductor will be on state, means in charge state, so it will discharge from L1 C1 SCR2 load R and back to L1. Yes, right. Very good. तो अभी आपको ये समझा 2 मोड. अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 4 मोड है. पहला मोड है T1 will on, that is, or SCR1 will on, then both are off. मतलब मैं बता रही हूँ, पहला मोड क्या है, ये हो जाएगा SCR will on. दूसरा मोड ये दोनों ऑफ है, मतलब ये ऑन होने के बाद ये ऑफ हो गया है, बट SCR2 अभी तक ऑन नहीं हुआ है. SCR2 अभी तक ऑफ है. तो वो जो क्या बोलते हैं इंटरवल रहेगा, वो रहेगा व्हेन SCR1 and 2 बोथ आर ऑफ, या उसे हम बोल सकते हैं डेड जोन. ओके, उसके बाद थर्ड मोड क्या होगा, SCR2 will on. SCR2 will on, फिर ये ऑफ होगा बट SCR1 अभी तक ऑन नहीं हुआ, तो मतलब 2 and 1 बोथ आर ऑफ. वो हो गया मोड नंबर 4.
Now how it will going to work, that we are going to study. Okay, so first one, let's see the mode 1, that is SCR1, where the SCR1 starts conducting. When the SCR1 starts conducting, जैसे अभी आपने बताया कि फिर फ्लो ऑफ करंट कैसे रहेगा, वोल्टेज सोर्स टू SCR1 टू CL and then R and then it R, that is the load. Okay, ये अलग है, मतलब ये जो है ये अलग है, ये कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है, और ये अलग है, ये लोड है सिर्फ. ओके, तो ये दो चीजें, ये RLC नहीं है, RLC नहीं है, ठीक है, सिर्फ R है, यहाँ पे लोड है तो R है, ठीक है. LC इज दी कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स. ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो कि व्हाट विच आर द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स, फिर मैं वहां पे दूंगी RC, LC, RL, CR ऐसे दूंगी, तो उसमें से आपको आना चाहिए कि दैट LC इज द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट. ओके, yes or no? Yes, ma'am. Okay, good. So in the mode 1 the SCR1 starts conducting. Yes, तो कैसे होगा देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, SCR1 starts conducting. जैसे SCR1 स्टार्ट हो गया तो लोड करंट कैसे होगा, ये it will flow like this, it will flow like this. ओके, मतलब उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो ऐसे रहेगा, राइट. उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा, पहले हम देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मतलब वो इनिशियली बेटा इट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, इट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज. यहाँ पे EC लिखा है, या हम बोल सकते हैं VCO बोल सकते हैं, VCO. ओके, VCO या EC बोल दो. तो एक सम अमाउंट ऑफ इनिशियल वोल्टेज, आप अगर आप मैटलैब में देखते हो ना, अगर मैं मैटलैब की बात करूं, एक मिनट, मैटलैब में अगर आप देखते हो RLC जब भी आप यूज करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे ना पूछा जाता है कि कैपेसिटर का कुछ इनिशियल वोल्टेज हमें सेट करना है क्या, तो वो वहाँ पे पूछता है ना कि इनिशियली उसका कुछ वोल्टेज है क्या, तो इट इज दैट वोल्टेज. वो इनिशियली कुछ तो भी है. अब वो कुछ तो भी है तो वो क्या करता है, जैसे ही हमारा सर्किट है, जैसे ही हमारा सर्किट है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसका जो ये प्लेट है ये पॉजिटिव निगेटिव है, इससे ये क्या करेगा, इट स्टार्ट चार्जिंग. ये चार्जिंग होगा, निगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो जैसे ही ये चार्ज होता है बेटा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चार्ज हो गया. कहाँ पे, स्टेज 1 पे. मैं ये पेंट में दिखाऊं क्या, डायग्राम ड्रॉ करके. ये हो गया. और उसके बाद मैं देखती हूँ मेरा कैपेसिटेंस का वोल्टेज, ये उसके बाद आएगा मेरा इंडक्टेंस का वोल्टेज. आर रेजिस्टेंस का वोल्टेज वो वैसे ही रहेगा, उसका कुछ ज्यादा ये नहीं. अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे दे दिया गेट पल्स. अब यहाँ पे गेट पल्स है क्या, नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, ये हो गया बेटा IG1 हो गया, ये हो गया मेरा IG2 हो गया. अब नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. ओके, सो नाउ व्हेन यहाँ से कंसिडर करो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से कंसिडर करो यहाँ तक. उसके बाद कुछ चालू होगा. तो जैसे ही हमने गेट पल्स दिया तो वोल्टेज की कुछ इनिशियल वैल्यू थी, राइट.
ये देखो वोल्टेज की कुछ इनिशियल, इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू थी, अब वो क्या कर रहा है, इट स्टार्ट्स चार्जिंग, ओके, इट स्टार्ट्स चार्जिंग, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ तक जा रही है। ऐसे ये वैल्यू हो गई। अब ये निगेटिव में जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है उसको मैं बोल सकती हूँ, एक तो ईसी बोल दो, सॉरी ईसी बोल दो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हो गई ये समथिंग कुछ तो भी हो गई। अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक हमारा वीएस है, ये हमारा वीएस है, यहाँ से यहाँ तक हमारा वीएस है, और वो उससे आगे भी बढ़ा, मतलब ये जो जितना पीछे गया ना, इतना पीछे गया ना, ये इतना आगे बढ़ा, तो ये जो टोटल वैल्यू रहेगी, ये टोटल वैल्यू क्या रहेगी बेटा, ये टोटल वैल्यू क्या रहेगी, वीएस प्लस इनिशियल चार्ज, वीएस प्लस ईसी, राइट, ये रहेगा ये टोटल वैल्यू, ओके। सो ये हो गया हमारा, जैसे ही हमने गेट पर दिया थायरिस्टर 1 को, हमारा जो कैपेसिटेंस का, जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है। जैसे ही कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज जितने इसमें चार्ज हो रहा है, उतने इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है वो कम हो रहा है। इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कैसे कम हो रहा है, ये हो गया हमारा VC, ये इतना जो टोटल वैल्यू है, ये मतलब ये वैल्यू, ये है ये वैल्यू, पैरेलल निकाल लो इसको, ठीक है, पैरेलल निकाले, इट विल कम लाइक दिस, ओके, इट विल कम लाइक दिस। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो टोटल है, ये वाला वैल्यू क्या है, सेम, VS प्लस वही इसी है, ठीक है। मतलब ये यहाँ, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, और ये निगेटिव ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे चली गई, ठीक है। जितना इसमें कैपेसिटेंस चार्ज होगा, उतने इसमें इंडक्टेंस क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, उतने इसमें इंडक्टेंस क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ओके। उसके बाद जो उसके बाद रहेगा, ये होगा सोर्स करंट, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये होगा लोड करंट, और ये होगा सोर्स करंट। दिस वन इज लोड करंट, दिस वन इज सोर्स करंट, सोर्स करंट। अब लोड करंट क्या होगा बेटा, लोड करंट इट स्टार्ट, ये अपना हमें देगा साइनोसॉइडल वेव यहाँ तक, ये हो गया, इसने हमें दिया अपना साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा इंडक्ट, क्यों हमें साइनोसॉइडल वेव दे रहा है, एज यू कैन सी हियर, ये दे रहा है, ये IS जा रहा है, लोड से कौन सा करंट जा रहा है, ये जा रहा है IS, ठीक है। जैसे ही जितना सोर्स करंट है उतना ही लोड करंट है, तो इन दिस T1 पर्टिकुलर T1 और दिस मोड 1, द IS इज इक्वल टू I0, IS इज इक्वल टू I0, ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद एक इंटरवल आएगा, एक इंटरवल आएगा जहां पे क्या होगा बेटा, कोई कुछ भी वर्क नहीं करेगा, जहां पे क्या होगा कि T1 तो बंद हो गया, T1 stop conducting, but T2 not yet start conducting, T2 not yet start conducting. So this time, this is particular interval, this is the particular interval. Here you can see what will happen here. अब T1 और T2 दोनों को कंडक्शन नहीं है, T1 और T2 दोनों को कंडक्शन नहीं है, so the voltage across the capacitance, it is attained, it is in the same value,
इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ये जितना चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा जो ये जो कैपेसिटर है ये चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू सेम है, उसने उतना ही कैरी किया है। बट हमारा जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या होगा, जैसे ही ये निगेटिव में चला गया, देयर इज नो सच कंडक्शन इन दैट थायरिस्टर, इधर वन थायरिस्टर और टू थायरिस्टर, what will happen, it comes to directly zero, ये डायरेक्टली जीरो में आ जाएगा, ये डायरेक्टली जीरो में आ गया, ये डायरेक्टली जीरो में आ गया, ठीक है। जीरो में आके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया यहाँ तक, ठीक है। जैसे ये आ गया, अब मुझे बताओ T1 भी कंडक्शन मोड में नहीं है, T2 भी कंडक्शन मोड में नहीं है, तो लोड के अक्रॉस का करंट कितना होगा? जीरो। सो दिस इज जीरो। IS के अक्रॉस का करंट क्या होगा? सोर्स करंट इज आल्सो जीरो बिकॉज कुछ कंडक्शन ही नहीं हो रहा है। यस और नो? यस। कंडक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया इंटरवल। अब उसके बाद जैसे ही आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर दिस इंटरवल, हमने क्या दिया? गेट पल्स दिया। हमने गेट पल्स किसको दिया? T2 को। तो यहाँ से हमारा हो गया मोड 3 स्टार्ट। अब जैसे ही मोड 3 स्टार्ट हो गया तो जो हमारा करंट है वो ऐसे पास होगा, हियर यू कैन सी, ऐसे पास होगा, ऐसे। तो लोड के अक्रॉस का करंट क्या होगा बेटा? हाँ, निगेटिव। लोड के अक्रॉस का करंट क्या होगा? निगेटिव। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ निगेटिव। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, लोड के अक्रॉस का करंट निगेटिव। IS के अक्रॉस का करंट क्या, मतलब सॉरी, सोर्स करंट कितना होगा? सोर्स करंट जीरो because there is no such source is connected to the load, that's why, ठीक है, it is again zero, okay। अब कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? it start discharging, how? क्योंकि ये इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी है, कैपेसिटेंस ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी है। अब ये कैपेसिटेंस विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू कैपेसिटेंस प्लस, देन SCR, सॉरी ये गलत है, देन SCR, देन R एंड देन L1, ओके। सो इट विल कम लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ओके। तो ये डिस्चार्जिंग हो गया। अगेन सेम उतनी कंडीशन पे आके वो रुक जाएगा। जैसे ही वो उतने कंडीशन पे आके रुक गया तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज हो जाएगा। वो वहीं से पकड़ेगा हमारा कनेक्शन और ऐसे चार्ज हो जाएगा। कितना? जितना ये था VS प्लस EC, उतना ये चार्ज हो जाएगा, उतना ये क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। So it is come like this, अभी क्या होगा? फिर से हमारा दूसरा मोड आ गया, ये हो गया फोर्थ मोड। यहाँ तक समझा सबको? यस और नो? यस मैम। फिर से अभी कौन सी कंडीशन आएगी बेटा? ये कौन सी कंडीशन है बताओ? डेड जोन, डेड कंडीशन। अब डेड कंडीशन में ये कौन सा, ये कैसे वर्क करेगा? हाउ द कैपेसिटेंस अक्रॉस वोल्टेज विल वर्क? It attains कांस्टेंट। It will be the constant value, yes of course, ये हो गई constant, okay। इंडक्टेंस क्या करेगा? वो जीरो पे आएगा, फिर से जीरो पे आके क्या करेगा? कांस्टेंट हो जाएगा across the dead zone and then it will come back to its original position, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इंडक्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, सॉरी इंडक्टेंस बोलती हूँ, करंट अक्रॉस द लोड जीरो, राइट?
एंड वोल्टेज सॉरी करंट सोर्स क्या होगा, वो भी जीरो क्योंकि ये चालू ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगेन व्हाट विल हैपन, अगेन आई विल गिव दी pulse, again I'll give pulse to the T1. T1, again the same procedure will follow. What will happen, Capacitor will Capacitance. start to charge. चार्जिंग, ठीक है। ये क्या होगा, इंडक्टेंस सॉरी voltage across inductance, it will start discharging like this, then again the output current will come like this, then the source current will come like this. Yes or no? Is it okay? Have you understood this? Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. क्या बोलते हैं, अब मैं बता दूं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया मेरा T2, सॉरी ये हो गया हमारा मोड 1, ये हो गया मेरा मोड 2, ये हो गया फिर से मेरा मोड 3 और ये हो गया मेरा मोड 4, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ओके। अब मोड 2 जो है, मोड 2 को हम क्या बोल सकते हैं, मोड 2 वेयर Dead zone. dead zone, then T1 and T2 both in off condition, right, उसे हम बोल सकते हैं dead zone, right। इसे क्या बोलते हैं, फिर भी इसको बोलते हैं TQ मिनिमम और TQ बोलते हैं। TQ इज इक्वल टू, अब मैं बताती हूँ TQ इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू है मोड 1 प्लस मोड 2 जो वैल्यू है, मतलब ये यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू है, ये है पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू है मोड 1 प्लस मोड 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। और ये जो रिंगिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब रिंगिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली मोड 1, सो मोड हियर आई एम राइटिंग मोड 1 इज पाई बाय ओमेगा आर। अब ओमेगा आर क्या है, इज द रिंगिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। और मोड 1 प्लस टू मतलब टोटल, वो क्या है पाई बाय ओमेगा, हमें पता है ना पाई बाय ओमेगा क्या होता है। तो हम TQ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डेड जोन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है और हमें ये पता है, तो हम दिस माइनस दिस बोल सकते हैं, मोड 1 माइनस 2, या फिर हम बोल सकते हैं पाई बाय ओमेगा माइनस पाई बाय ओमेगा आर। कैन आई से दिस, Yes, ma'am. यहाँ पे समझा क्या सबको, है ना। हमारी वैल्यू कैसी देखो, ये है हमारी टोटल मोड 1 प्लस मोड 2, बराबर है। ठीक है, और हमारा सिर्फ ये है हमारा मोड 1। तो मोड 1 है
पाई बाय ओमेगा आर और ये है पाई बाय ओमेगा. सो पाई बाय ओमेगा माइनस पाई बाय ओमेगा आर इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर टाइम or the interval time or the dead zone time. Okay, so this is the actual you can say the timing. Okay, so this is all about the series inverter. अब ये है basic series inverter. Now I'll tell you. Okay, हमें ये स्टडी करना है. ठीक है बेटा, मैं ये आपको बता दूँ. आप ये देख सकते हैं, ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी. ओके, ये नोट्स मैं आपको अभी शेयर करने वाली हूँ 2 दिन के बाद. अभी मुझे बताओ, आपने यहाँ पे देखा ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर, ये सब कुछ लिखा है, ये सब हमें पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, ये भी हमें पढ़ना है. हमें पता होना चाहिए कि क्लासीफाई कैसे किया है इन्होंने, है ना. ये है वेवफॉर्म के जैसे, और ये है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन सा यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, ये एप्लीकेशंस ऑफ इन्वर्टर. अब मैं ये भी क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ कि एप्लीकेशंस क्या है इन्वर्टर के, है ना. तो मैं कुछ दे सकती हूँ. ठीक है, तो ये भी इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये है बेटा बेसिक सीरीज इन्वर्टर, जो हम अभी पढ़ चुके हैं. ये हमने अभी स्टडी किया बेसिक सीरीज इन्वर्टर. ठीक है, ये उसका वेव फॉर्म है बेसिक सीरीज इन्वर्टर का. ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेशंस ऑफ ऑन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसका लिमिटेशंस होते हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का. दिस यू नीड टू स्टडी, दैट इज एफ मैक्स इज इक्वल टू 1/2/L. से ये पढ़ चुके हो आप. हैव यू हर्ड दिस? हेलो, आईसीएस कुछ में हुआ होगा ना आपका, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये बताओ, आपको आपके सिलेबस में है बेसिक इन्वर्टर, बेसिक सीरीज इन्वर्टर. दिस इज द बेसिक सीरीज इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे इन्होंने बताया इम्प्रूव्ड सीरीज इन्वर्टर, मतलब देयर आर सम ड्रॉबैक्स हियर, दीज आर सम ड्रॉबैक्स. टू रिड्यूस दिस ड्रॉबैक और टू एलिमिनेट दिस ड्रॉबैक, उन्होंने न्यू और इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सीरीज इन्वर्टर वहाँ पे ये दिया है. ये देखो, इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ इन्वर्टर, जहाँ पे L जो इंडक्टेंस है उसको हाफ किया है. L को क्या किया, L/2 करके इन्होंने L1 और L2 कंसिडर किया. ठीक है, यहाँ पे SCR1, यहाँ पे SCR2 कैपेसिटेंस और ये लगा है. ठीक है, सो ये कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस हम बोल सकते हैं सीरीज में है लोड के साथ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीरीज इन्वर्टर. हाँ, सीरीज इन्वर्टर. अब ये इम्प्रूव्ड फॉर्म टाइप 1 है, इम्प्रूव्ड फॉर्म टाइप 2 है. टाइप 2 में उन्होंने क्या किया, कैपेसिटेंस को हाफ किया, इंडक्टेंस को भी हाफ किया. यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ इंडक्टेंस को हाफ किया था, कैपेसिटेंस जैसे के वैसे था. ठीक है, तो ये उसका ये है. उसके बाद उसका एप्लीकेशन एडवांटेजेस, ये इम्पॉर्टेंट है सीरीज इन्वर्टर. ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने ये 2 इम्प्रूव फॉर्म दिए हैं. ये इम्प्रूव फॉर्म हमें नहीं पढ़ना बिकॉज इट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस. वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दी simple basic series inverter. This is just we have studied right now with the waveform also. Okay, so this is all about the series waveform, a series inverter. So now if we are talking about the single phase parallel inverter, अब जो parallel है वो जो है, यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा, ये ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, यहाँ पे टैपिंग है, सेंटर टैप. ठीक है, तो उसके साथ ये पैरेलल में यूजुअली ये कनेक्ट हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल इन्वर्टर. ठीक है, अब इसका जो है, इसके 2 मोड है, अगेन द सेम थिंग. अब ये देखो, ये आपको कहाँ क्या क्या पढ़ना मैं बता देती हूँ आपको पहले. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ये पैरेलल इन्वर्टर. इसके 2 मोड, ये मोड्स कैसे होते हैं. ठीक है, अब ये इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड अलग, इंडक्टिव लोड अलग. हम सिर्फ रेजिस्टिव लोड पढ़ने वाले, प्योरली रेजिस्टिव लोड. ओके, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सीरीज पैरेलल इन्वर्टर. ओके, उसके बाद ये हाफ ब्रिज और सिंगल फेज हाफ ब्रिज और सिंगल फेज फुल ब्रिज हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज. अब ये जो हाफ ब्रिज है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है बेटा. इसको इन्होंने क्या किया, मैकम्यूरी बेडफोर्ड कम्यूटेटेड हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है, ये उन्होंने पढ़ाया है. ये हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, तो ये मैकम्यूरे वाला है, मैकम्यूरे फॉर हाफ ब्रिज एंड मैकम्यूरे फॉर फुल ब्रिज दोनों है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज इन्वर्टर्स। ये हमको पढ़ना था बट आपके सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद है ये वोल्टेज कंट्रोल एंड हार्मोनिक रिडक्शन इन इन्वर्टर। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी थॉरोली। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। पीडब्ल्यूएम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वेरियस पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स, पल्स सिमेट्रिकल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एसपीडब्ल्यूएम, ये हम पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टर। जो मैं आपको नोट्स तो पूरे शेयर करूंगी बट नोट्स में आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज द सर्किट डायग्राम। नाउ टेल मी द मोड 1. Then SCR1 will be triggered. Right. Then what will happen? Then current will Current flow will from V to L Yes. and to the center tap हाँ. to the N1 side हाँ. to the SCR1 and back to V. Yes. Yes, yes, yes. This will be like this. So VS positive, L, N1, हम यहाँ पे A पॉइंट दे देते हैं, OA, ये O है, A है, O, A, SCR1 and then it will come back to the V minus. ठीक है, अब now what will happen if SCR2 will conduct? Yes. What will happen when SCR2 will conduct? क्या होगा? Current will flow from V, L, N1, SCR2 and back to V. O, B, SCR2. Is it like this? Will it be like this? Yes, ma'am. Okay. So in the mode 1 what will happen, the voltage, the output voltage is there, okay, in the secondary of the transformer R load. So positive, negative, the volt V0 will be like this. So the input is like VDC, L, then O, A, T1 and then it will come back to the VDC. Okay, and in the mode 2 what will happen, the VDC, that is this one, is this open circuited. So the current will flow from like this, L, O positive, B minus, T1, this one will T2 and then it will come back to the VDC. In this the polarity of the load will be changed, the polarity of the load will be changed and the current will come like this. Okay, so this is the waveform for parallel operation. यहाँ पे इन्होंने पहले T2 को ट्रिगर किया, देन T1 को ट्रिगर किया, उसके पहले उन्होंने इंटरवल लगा, यहाँ पे डेड जोन रखा है। ठीक है, अब ये डेड जोन में क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वही होगा, VC क्या होगा, ये आएगा 2VS आएगा। 2VS क्यों आएगा बेटा, 2VS क्यों आएगा, ये सेंटर टैप है, अगर हम ये V बोलते हैं और ये V बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है ना, तो V प्लस V 2V या 2VS हम बोल सकते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इनिशियली इसको कुछ नेगेटिव वोल्टेज रहेगा, देन इट स्टार्ट चार्जिंग, चार्जिंग होने के बाद ये एक 2VS पे आके स्टॉप हो जाएगा, देन व्हेन द ट्रिगर when the T2 will trigger, then it will start discharging. Okay, same voltage across T1 will be like this. Okay, the output voltage will be VS, output voltage will be like VS. Why VS? Why VS? क्योंकि इधर जैसे T1 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ही चालू हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे हमें वोल्टेज आएगा, राइट। एंड इफ सपोज ये चालू हो जाएगा, मतलब T2 will start, तो this half portion will start ना, half portion. Wait ना, बोलना रे मैम को। हेलो, what will happen कि इधर this half condition मतलब OA will come across this load और
OB will come across this load. So it is the VS, okay? It is not total 2V. So that's why in the voltage V0, इसके across जो voltage आएगा, it will be VS, okay? For when T1 is triggered, it is positive. When T2 is triggered, it is negative, okay? The current will come like this. एक trigger हो जाएगा, उसके across का current, IC के across का current, and it will come like this, okay? Simultaneously, the IT1 मतलब current across T1 and current across T2 will be like this, okay? So this is all about the parallel inverter. If we are compare the series and parallel inverter with the help of these parameters, so the first one, position of commutating components, it is in series with the load, and the capacitor is the only component which is parallel with the load, so that's why it is known as the parallel inverter, and this is known as the series inverter. Then types of commutation, it is class A. अब class A, class B, class C, class E, class D, ये जो सारे कम्यूटेशन है ये आपके हुए नहीं है, ठीक है? आपको ये भी नहीं पता होगा मेरे हिसाब से कि फोर्स कम्यूटेटेड क्या होता है, लाइन कम्यूटेशन क्या होता है, सोर्स सेल्फ कम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है? थायरिस्टर में है ये पार्ट, ठीक है? अब ये क्लास ए कम्यूटेशन, अगेन देयर इज वन सर्किट डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दैट हम देख रहे हैं कि कम्यूटेशन कैसे हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्यूटेशन व्हिच इज इन द थायरिस्टर टॉपिक, ओके? नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्टर, ये सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर है, ये फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर है. देन रेजोनेंट सर्किट, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत नहीं है. रेजोनेंट सर्किट मतलब फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है, the high frequency F is equal to 1/2 pi under root LC, okay? Then the output transformer, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है जो हमने अभी देखा. Then waveform कैसे, it is depend on load and it is independent on load. Why it is depend on load and that is independent on load? यहाँ पे उसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से. Then the distortion in the output मतलब the disturbance or the problems, ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा है सीरीज में और पैरेलल में लो है. देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं. The output waveform is sine wave and here it is square wave. The application, it can be used in the induction heating and here in the emergency system like hospital and all. So this is all about the voltage. This is all about the parallel inverter. So today we have studied the what is inverter. We have studied what is inverter. Then we have studied the different classification, how the inverter has been classified. According to the classification and according to our syllabus, we have studied this single phase half bridge inverter, single phase full bridge inverter, then